Assalamu alaikum students. Can you guys hear me? Hello, ma'am. Hello. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam. How are you, ma'am? I'm fine. How are you? Also fine, ma'am. Okay. Who is speaking? Ma'am, Chamanlal here. Hi Chamanlal. How are you? How was your Fine, ma'am. How was your classes other than this one? Ma'am, good. Good. Yes, ma'am. What's your favorite subject? Ma'am, IR. IR. Okay, you guys are Yes, ma'am. studying IR as well. Yes, ma'am. So you guys can hear me loud and clear. Please write in chat. Everybody write in chat that you can hear me. Only few students are here. Where are others? Everybody write your name in the chat so that we can have a little bit of attendance. Somebody's mic is on. Please mute your mics. Mute. Okay, Janet, mute your mouth. Ma'am, Mic. Yes, कौन है? Who is speaking? Okay, I just mute somebody. Mhm. Me unmute Janet. Janet, you were saying something? Please unmute yourself and say something. ma'am, I said your voice is not coming properly. Please speak Now, if a I bit. wasn't speaking at that time, now I'm speaking. Okay, ma'am. Okay. Now, ma'am, it's right. I was reading your responses on the chat. Okay, ma'am. Yeah. So, if any new students here, or we have the previous class, which was a little bit of introduction and a little bit of introduction of the communication skills. So if I ask you, or what is communication skill, what you gonna tell me? Any student? Yes, Abdul Jabbar. Are we the only one who can communicate? If I ask you, Yes, ma'am. What you want to ask from us? I'm saying, are we the only one who can communicate? क्या हम ही सिर्फ इंसान हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं मतलब जानवर I वगैरह think, ma'am, animals also can speak with each other. ओके कैसे 10 मिनट से नहीं हो ये पढ़
For example, Sidra, you are saying something. You want to say something? I think only human being can communicate. Okay. और कोई बच्चा बताना चाहेगा? Ma'am, Yes. but if we see that the concept of communication, it says that communication means exchanging of information. So I think Shatash was right. She was saying that animals and birds can also communicate with each other by sharing their signs and by receiving the messages. Okay. How can I go to the second slide, please? Ma'am, what is communication skills? Ma'am, can I say something? Yes, sure. Ma'am, communication skill, communication are ability you use when giving and receiving different of information. सही है, इट्स ओके, बिल्कुल राइट है. कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं, यू आर राइट. समबडी एल्स वांट टू से समथिंग, यू कैन write in chat so I can read your responses in chat if your mics are not working. Okay, ma'am. Not for you, you can speak, your mic is working. So every living being, every living thing can communicate in one way or another. कैसे? अगर आपने देखा होगा कि चिड़िया लोग आपस में बात करते हैं, वो हमसे भी खुश होकर बात करते हैं. जब मछलियाँ अगर आपने पाली हैं अपनी लाइफ में, तो वो अक्सर जंप करती हैं वाटर में, वो अपनी खुशी का इजहार करती हैं. मछलियाँ जो होती हैं, they jump for joy. Birds sing to communicate in a variety of purposes which are unknown to us. How they, हमें नहीं मालूम कि how birds can like how what they want to convey us, but we also can infer that they are trying to communicate something either to us or to the other birds. इसी तरह से we have dogs, वो बार्क करते हैं, आप उनको कोई ट्रीट दे दें वो भी बार्क करते हैं, आप उनको डराने की कोशिश करें वो तब बार्क करते हैं. ठीक है. कैट्स जो होती हैं वो बेसिकली बड़ी शहाना होती हैं, बहुत कम आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव करती हैं. लेकिन आपको एक बात मैं बताती हूँ कि कैट्स अगर आपको पसंद करेंगी तो वो आपके पाँव के पास आके रब करेंगी या आपके हाथ को रब करेंगी. सेम गोस विद द dogs. This is the way they are communicating their affections to you. There are other examples over here that cow moves and horse whines, but they are communicating with you in a what way? If I ask you, किस तरह से communicate कर रहे हैं हमसे? अगर मैं आपसे पूछूं, जी KB, you can speak. Sorry, ma'am, by mistake. Okay. फारिया, आपका माइक खुला हुआ है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sorry, ma'am, गलती से on था. It's okay. So you want to say something, Faria? Do you have any another examples of animal communicating with us or with each other? No, ma'am, no idea. Really? You don't have any dogs or cats at home? No. Don't you have any birds or anything like any pets? No, ma'am. Okay. You haven't even observed outside कि जो street dogs होते हैं, cats होते हैं, how they communicate with you or anybody. जब हम गली से जा रहे होते हैं तो अक्सर हमें कुत्ते मिल ही जाते हैं रास्ते में. जी. They bark at us. They are afraid of us, so they bark at us. ठीक है? This is how they Yes. are communicating with us. They are showing their fear or they are showing their hatred. ठीक है? GKB, do you want to say something? Okay, by mistakes your Yes, ma'am. Yes. I observed one thing. Yes. कि रात को जो बिल्ला बिल्ला होता है ना, रात को उसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत होती है दिन के मुताबिक. Do you have any idea why?
No, ma'am. Confused about it. Okay, but you did observe something, which is good. Perhaps he's afraid of us, or he's afraid of something else unknown to us. ये भी हो सकता है. Now let's go to another slide. What is the difference between a language and a communication? कोई मुझे बता सकता है? Because हमने अभी ये चीज़ establish किया that every living thing can communicate. Either they are fishes, they are dogs, they are cows, anything. They communicate with each other, with us in a different way. They don't have a language. So only human being can speak a language. तो आप मुझे बताएंगे कि what is the difference between a language and a communication? मैम लैंग्वेज सेम हो सकती हो जाए तो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर कम्युनिकेशन ह्यूमन और जैसे कुत्ता हो या कि बिल्ली उनके दरमियान भी हो सकती है. ओके, और कोई भी बोले जल्दी से. मैम लैंग्वेज तो मतलब बाय वर्ड्स बोली जाती है, बोली जा सकती है. बाकी जो कम्युनिकेशन है वो अगर हम किसी बर्ड से चाहे या कोई फिश हो या ऐसा कोई पेट हो जो कि मतलब जिसको पालना हमारी विश हो, ऐसे कुछ पेट्स और ऐसे कुछ मतलब बर्ड्स होते हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, तो इसको भी हम एक किस्म की कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि विद बर्ड्स आर पेट्स आर लाइक देम और थिंग्स. सही. Can I say? Yes, yes, sure, Aksa. Ma'am, I think communication is something which would be shown from your behavior and from all the way without language. And language is something which comes from the words. Like अगर आप wording use कर रहे होते हैं, अगर आपके जो भी आप बात कर रहे होते हैं उसके दरम्यान अगर कोई words use होते हैं तो वो language है. और communication आप बगैर बात किए भी अपने सामने वाले तक पैगाम पहुंचा सकते हैं. लाइक एनिमल्स हैं, हम किसी भी एनिमल से बातें नहीं कर रहे होते हैं बट उनको पता चल रहा होता है कि ये मुझे इस वक्त क्या कह रहा है, हम उन्हें इशारे कर देते हैं, वो उस तरीके से उस चीज को गेस कर लेते हैं. तो आई गेस मे बी इट इज दिस. Anybody else want to add to it? Aksa, very good. थैंक यू मैम. Yes, ma'am. Yes, Chaman Lal, आप बोलिए. Ma'am, communication relies on verbal and non-verbal codes of transfer and information. जी. और and communication message or information between two or more people focusing on the message. सही सही. लेकिन लैंग्वेज में और फिर कम्युनिकेशन में क्या फर्क होगा, थोड़ा कुछ. Ma'am, I want to tell. Yes, sure, Arzu. Ma'am, I think communication is talking to somebody to deliver our messages, Mm-hmm. and language is a source to communicate in human beings. Okay. कोई और? Very good. एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को अजान की आवाज़ आ रही होगी, हम थोड़ी देर एहतराम करते हैं. We for a prayer call, then we will continue. तब तक आप चैट में लिखिए कि what is language, what is the difference between a language and a communication. चैट में लिखिए, I will read your responses. Yes, ma'am.
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं चुप हुई थी बिकॉज अजान हो रही थी, उनका एहतराम कर रहे थे हम। कैन यू हियर मी नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's go to the another side of the topic, which is जुनेद मेरी स्क्रीन खराब मत करें। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जब इंसान शुरू में जब बोलना उसने अभी नहीं सीखा था तो वो फिर भी कम्युनिकेट करता था। कैसे कम्युनिकेट करता था? अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस तरह के सिंबल्स बना लेता था, गारों पे सिंबल्स के जरिए है। लेकिन वैसे आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर आप इफ़ आई आस्क यू पीपल कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कोई बताएगा? इशारों से, इशारों से। मैम इशारे करके। वेरी गुड, इशारे करके। और कोई? उस वो चीज जाके दिखा के, लाइक अगर मुझे खाना खाना है तो मैं जाके उस पे खड़ी हो जाऊंगी कि भाई मुझे ये खिलाओ या समथिंग लाइक दैट। गुड। सम अदर पर्सन wanna add to it? जुनेद, आप कुछ बोलेंगे कि हम अगर बोल नहीं सकते तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जुनेद, आर यू देयर? आई थिंक इट्स नॉट देयर। ओके। जब इंसान ने बोलना नहीं भी सीखा था, लैंग्वेजेस जब नहीं हुए थे स्टार्ट, तो उस वक्त भी वो कम्युनिकेट करता था। जैसे अगर आपने अगर बाव वाव थियरी पढ़ी हो, तो एक बच्चा अपने बाप के साथ जंगल जाता है और वहाँ पे वो एक डॉग देखता है और वो घर आके बताता है कि उसने एक इशारे से बताता है कि देयर वाज अ एनिमल, इट हैज स्मॉल ईयर्स। अपने ईयर्स की तरफ इशारा करके बताता है किस तरह के ईयर्स थे, पॉइंट करके, एंड देन ही सेज कि उसकी छोटी सी टेल थी और वो बाउ वाउ करता था। मतलब उसने उसको इमिटेट करके बताया, उसकी आवाज़ निकाल के बताई। दिस इज़ हाउ इट इज स्टार्टेड। इस तरह से हमारे वोकल ग्लैंड्स जो है, वो वोकल कोर्ड्स जो हैं वो वर्क करना शुरू हुए थे।
Since the beginning of the world, human beings, before developing the ability to speak, used signs to communicate. इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, साइन, जैसे अभी बच्ची ने भी बताया। आज भी हम साइन लैंग्वेज और सिंबल्स यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज एंड सिंबल्स आर वेरी मच प्रिवलेंट इन आवर टुडेज लाइफ। कौन से साइन लैंग्वेजेस और सिंबल्स आज भी हमारी लाइफ में मौजूद हैं जो हमें बताते हैं? डू यू हैव एनी मैम एग्जाम्पल? जो वो जी जी मैम जो तो वो होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो गाड़ियों पर होते हैं अपने इशारों से, क्या उनका नाम? गाड़ियों पे होते हैं? कौन से गाड़ियों पे? नहीं नहीं, जो रोकते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक पुलिस। यस यस यस, ट्रैफिक पुलिस। जी, ट्रैफिक पुलिस नहीं, ट्रैफिक सिग्नल्स। अगर आपकी ट्रैफिक पुलिस वहां पे मौजूद नहीं है तो एक ट्रैफिक सिग्नल होगा, उसका साइन होगा, वो उसमें आपको बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रेड लाइट। ट्रैफिक सिग्नल में अगर रेड लाइट लगी हुई हो तो क्या मीनिंग है? स्टॉप। स्टॉप। हाँ, तो हमें वो बता तो नहीं रहा, वो हमसे कम्युनिकेट ही कर रहा है ना, मतलब वो बोल नहीं रहा कि रुक जाओ। सही। इसके अलावा और कौन कौन से साइन हैं जो हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना? यस जो है। मैम पार्किंग का भी तो है। वेरी गुड, पार्किंग साइन। जब ग्रीन होता है तो बोलते हैं गो। वेरी गुड जो है। और मैम कहीं मैम पर रेड होता है, तो रेड वहां होता पर है तो स्टॉप एंड देन। और मैम कहीं पर राइट और लेफ्ट के सिग्नल्स बने हुए होते हैं। वेरी गुड। और मैम रोड्स पर जो है ना व्हाइट कलर की वो लाइनें लगी होती हैं, बड़े गाड़ियों के लिए, छोटे गाड़ियों के लिए। हाँ, इसके अलावा जेब्रा क्रॉसिंग जिसे कहलाता है वो भी होता है। और अरीबा बताएं। और जैसे कहीं पर स्मोकिंग के लिए मना किया गया होता है तो उस पर स्मोकिंग करके रेड कट लगा होता है कि नो स्मोकिंग, इस तरह के साइंस होते हैं। वेरी गुड। ताहिरा आप बताएं। और मैम लाइब्रेरी में डोंट मेक नॉइज के वो पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। वेरी गुड, जो हमें बता रहे होते हैं किस तरह से वो जो हमसे कम्युनिकेट मोबाइल ना करने का होता है। मैम आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नो मार्क्स नो एंट्री, हर गेट पे लगा हुआ होता है कि मार्क्स के बगैर इजाजत नहीं है। वेरी गुड, ये मैं सोच। मैम मोबाइल में एरोप्लेन मोड का साइन होता है और रोड पे स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं। वेरी गुड। और कोई? मैम रोड पे जो मैम यू टर्न का जो निशान होता है वो। यू टर्न का निशान हमें क्या बताता है? हाँ मैम, यू टर्न का यही मतलब होता है कि मतलब मैम एक तो जो है गाड़ियां जो स्पीड से जा रही हैं, जो रोड पे तो रुक तो नहीं सकती हैं, टर्न तो नहीं कर सकती, और एक यू टर्न का मतलब है कि आप यहीं से क्रॉस कर सकते हैं। वेरी गुड। जी कायनात, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलें। ये इसके अलावा हमारे पास ये होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है, एक लैंग्वेज भी चाहिए होती है। ज़रूरी कुछ बातें होती हैं जो हम अल्फाज के साथ ज़रिए अपने थॉट्स और अपने दिल की फीलिंग्स बयान करने के लिए एक मीडियम, एक टूल को जो इस्तेमाल करते हैं, उसका जो खला है वो हमारी लैंग्वेज पुर करती है। यानी क्योंकि वी कैन स्पीक, वी आर द ओनली मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली वन हु कैन स्पीक। There should be a medium through one can express their thoughts and message. Language is that medium or tool. हम वैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट लैंग्वेज के, लेकिन क्योंकि अब हमारे अंदर एबिलिटी है, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली पीपल हु आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इट, तो हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बट हमारा काम हो सकता है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से राब्ते का, अनलेस एंड अनलेस कि हम अपने थॉट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस बताना चाहें। जाहिर सी बात है कि जब तक अगला बंदा आपके ख्यालात और एहसासात को समझ नहीं पाएगा, आप अपने सही तरह से उसको बता नहीं पाएंगे, तो आपकी सही तरह की इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। अब लाल लाइट का मतलब तो ये है कि भाई यहाँ पे स्टॉप साइन है, इस पे आप रुक जाएं, लेकिन ये बात किसी ने आपको समझाई भी तो है ना, अपनी जबान के जरिए, जो भी जबान उनकी होगी, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे सिंधी है। Language can simply be defined as the principal method of human communication
consisting of words used in structured and conventional way and conveyed by speech, writing or gesture. अब इसमें हम सिंप्लीफाइड करके अगर लैंग्वेज की डेफिनेशन को देखते हैं तो वो ये है कि एक प्रिंसिपल मेथड है, एक असूली मेथड है। असूली मेथड इसलिए है कि सबके पास अपनी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस तरह से लैंग्वेज बनती है, इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि हमें एक तो इसको कोडिफिकेशन करनी पड़ती है। कोडिफिकेशन ये है कि इसके बाद ग्रामर हो, इसकी ग्रामर हो, जिसको स्ट्रक्चर का मीनिंग आ गया। इट शुड हैव अ ग्रामर, देयर शुड बी अ रूल बुक ऑफ अ ग्रामर। किस लैंग्वेज की रूल बुक होती है जिसमें उसकी ग्रामर के बारे में उसके रूल्स लिखे हुए होते हैं। बुक्स इसमें छपी भी हों, इसमें रिटन फॉर्म में भी हो। ये जब ज़्यादातर रिटन फॉर्म में भी होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो आज रिटन फॉर्म में नहीं है लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इंटरनेशनली लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसकी ग्रामर होनी चाहिए, उसके रूल्स होने चाहिए, उसमें लिटरेचर लिखा हुआ होना चाहिए। ये कम, और फिर जिस मुल्क की वो लैंग्वेज है उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। कन्वेंशनल हो, कन्वेंशनल ईजी हो, नॉर्मल हो, मुश्किल नहीं हो, ईजिली आप एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे की बातचीत को समझ सकें, ईजिली कन्वे हो सके बोलचाल में, लिखने में और जेस्चर्स में भी। अब जेस्चर में आप आ जाते हैं तो जब मैं किसी को टाटा करती हूँ तो उसको समझ में आ जाता है कि ये अब बाय बाय का कर रही है इशारा। कोई और एग्जाम्पल आप लोगों के पास हो इसी तरह का लैंग्वेज का तो प्लीज शेयर करें। There is a example right on the screen, you can read it। कि एक और जो है कि अगर आप जेस्चर करते हैं कि मुझे खाना खाना है, मुंह की तरफ इशारा करते हैं और फिर खाने की तरफ भी इशारा करते हैं, तो बताते हैं कि मुझे भूख लग रही है। अब जैसे अगर आप किसी ऐसे मुल्क में Ma'am, oftenly when teacher says to student that by his finger that keep quiet. Yes, very good। मैम जैसे अजान या कि नमाज के लिए इशारा करते हैं, हाथों को कानों के पास लेके जाते हैं। वेरी गुड मैम, through hand or through finger we also point out any person or anything। जबरदस्त। आगे कोई और बच्चा? मैम फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है जो कि मतलब बोल नहीं सकता, अगर उसे मार्केट में कहीं पेरेंट्स के साथ वो जाए तो ठीक है, अगर उसको जो चीज चाहिए होती है तो वो मतलब हाथ से इशारा देता है कि मुझे ये चीज चाहिए। बिल्कुल। मैम हमारे घर के पास भी पड़ोसी है, गूंगा है, हम उससे इशारे में बात करते हैं। ओके, वेरी गुड अस्मान। तो आपको क्वेश्चन, हम लोग गुस्सा है या सैड है? दोबारा बोलिएगा, कम अगेन। मैम मैं जैसे कि बाय फेस एक्सप्रेशन कि हम अगर गुस्से वाला फेस बनाए या सैड फेस बनाए, इससे हमारे मूड का पता चल जाता है। जबरदस्त। एक और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं इशारे की, अब अगर हमें इस चीज़ का सही मीनिंग पता हो किसी चीज़ का, जैसे कि हम किसी नए मुल्क में जाते हैं तो लैंग्वेज हमें नहीं आती, लेकिन अगर हम इशारे करेंगे तो बहुत से लोग हमारी चीज़ें नहीं समझ सकेंगे। लेकिन हमें अगर लैंग्वेज के कुछ अल्फाज आते हों और कुछ चीज़ों को हम इशारों से बात कर लें तो हमारे लिए वहाँ पे रहना या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। तो सारी हम पूरी टोटली जो है वो जेस्चरिंग पे या साइंस या सिंबल्स पे जो नहीं रह सकते। लैंग्वेज हमें आसानी देती है। जैसे कि अगर मैं जाती हूँ अमेरिका और मुझे उर्दू आती है, लेकिन मुझे भूख लगी है और मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे ईट का वर्ड आता है, तो मैं उसे जाके बोलूँगी शॉपकीपर को ईट। वो ये कहेगा कि ठीक है ईट, लेकिन क्या ईट? तो फिर मैं उसको इशारा करके बताऊंगी ब्रेड की तरफ या रोटी की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ। तो वो हमें एक ईजी वे दे देती है। लैंग्वेज एक हमें थोड़ा सा
आसानी दे देती है अपनी बात कन्वे करने के लिए। समझ में आया? तो इट्स अ मीडियम, जो हमने भी पढ़ा, अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ कन्वेंशनल वे, इजी हो जाता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। Let's go to the next slide. These are the some differences that I have written over here. Language is a system of communication that relies on verbal or non-verbal codes to transfer information. Like this, I have just given you the example, and you have also given us the example कि भाई हम लोग verbal और non-verbal तरीके से communicate कर सकते हैं। कोर्स जब आ जाता है, साइंस लैंग्वेज जब आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, तो वो नॉन वर्बल हो जाते हैं। टाटा जो हो गया, जेस्चर से भी नॉन वर्बल हो गया। वर्बल गुड बाय हो गया, टाटा का इशारा कर देना नॉन वर्बल हो गया। ठीक है जी। कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ इंटरचेंजिंग मैसेजेस और इंफॉर्मेशन between two or more people focusing on the message. कम्युनिकेशन जो है वो हम एक दूसरे के साथ अपने मैसेजेस या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, और हमारा पूरा फोकस जो होता है वो उस इंफॉर्मेशन और मैसेज पे होता है। कोई एग्जांपल देगा मुझे इस लाइन की? कोशिश कर लें, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ सही होना है। यस अक्सा? मैम फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज हमारे सामने पड़ी है, लेकिन हम उसको जो है एक्सप्रेशन के अलावा उसको बोल नहीं पाते, तो वो अगर एक चीज हमारे सामने पड़ी है तो हम उसकी तरफ मतलब इंडिकेट करके, इशारा करके दूसरे को समझाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे ताकि ये चीज ये। गुड। कोई और? मैम जैसे कि 2-3 लोगों का ग्रुप बैठा हो, उनमें से एक कोई बोल रहा हो या कि बात कर रहा हो, तो दूसरा तीसरे बंदे को इशारे करके उसके मतलब हवाले से कुछ कहना चाहे या कि उसकी बुराई करना चाहे तो इशारे से करते हैं। किसी को चुप रहने का आप इशारा कर सकते हैं, मतलब आंखों से उसको, जैसे हम लोग अगर किसी, जब हम छोटे होते थे, when we used to go to our relatives and we used to have little bit of a naughty instincts in us and try to be naughty, तो मम्मा और पापा हमें बिल्कुल आंखों से देख के ही चुप करा देते थे। Does anybody remember this? तो ये हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन जो सेकंड है ये वाला, इसको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? ये जो है, communication is a way of interchanging messages or information between two or more people focusing on the message. communication में ये है कि हम मैसेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आपका जो मेन फोकस है वो मेरे लेक्चर पे है। आप चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं, आपका फोकस मेरे लेक्चर पे होगा। क्यों? कि मेरा जो भी मैसेज आपको जा रहा है वो एक इंफॉर्मेशन जा रही है, वो आपके लिए कीमती है। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो प्लीज करें, फिर हम। मैम जैसे अजान की हुई, जो अभी अजान हुई तो सारे खामोश हुए, अजान की मिसाल। जबरदस्त। सही। अगेन जो बात हम लोग भी डिस्कस करते हुए आ गए, द लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। Language changes dynamically as new words can be created. Communication is considered static as its basic steps remain unchanged. जब हम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में रूल्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि द लाइन विच इज आई एम रीडिंग, लैंग्वेज चेंजेस डायनेमिकली एज न्यू वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। लैंग्वेज में हम बहुत सारी नई चीज़ें, नए वर्ड्स ऐड करते रहते हैं। जैसे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो डिक्शनरी है उसमें जुगाड़ का वर्ड जो है वो ऐड कर दिया गया है।
जैसे कबाब्स ऐड हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम डिक्शनरी में तो ऐड नहीं करते, लेकिन किसी दूसरे के सामने बोलते हुए थोड़ा सा रुकते हैं, झिझकते हैं। जैसे कि अब्यूजेस हो गई, किसी की डिसरिस्पेक्टफुल बातें हो गई। तो लैंग्वेज में तो मौजूद है ना ये चीज़ें भाई, एक अब्यूज का वर्ड भी मौजूद है, एक बदतमीजी का वर्ड भी मौजूद है, ठीक है। कुछ गलत मीनिंग वाले, लेकिन गलत मीनिंग वैसे नहीं। जैसे एडिक्शन का अगर वर्ड आप यूज करते हैं तो इसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन आती है, नेगेटिव लोगों पे असर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है कि एडिक्शन हमेशा एक नेगेटिव वे में लिया जाएगा। एडिक्शन का मतलब है किसी चीज की लत पड़ जाना। तो कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो गलत मानों में ही ली जाएगी। लेकिन जब आप किसी को बोल रहे होंगे तो आप कम्युनिकेट जब कर रहे होंगे तो आप ऐसी चीजें अपने लैंग्वेज से हटा के उससे बात करेंगे। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट यू विल नेवर यूज अ स्लैंग वर्ड। आप कभी भी स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, इस किस्म के अल्फाज नहीं यूज करेंगे जिससे आप उनके अदब में, एहतराम में कमी होगी। तो लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्टैटिक रहती है। कम्युनिकेशन के कुछ असूल हैं जो आपने फॉलो करने। आए समझ में? जैसे पोलाइट होके बात करना एक आपका एग्जाम्पल है, रिस्पेक्ट से बात करना आपका एक एग्जाम्पल है, ये आपको सिखाया जाता है। जब कोई शख्स आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बात कर रहा है तो वो चाहे लैंग्वेज कैसी भी इस्तेमाल कर रहा है, वो तो एक अलग बात आ गई कि भाई ठीक है, उसमें उसने ही हैज यूज्ड अब्यूजेस एंड अदर नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड्स, बट वो जिस मैनर से आपसे बात करेगा वो भी काउंट किया जाएगा। कोई एग्जांपल दे दीजिए इन दोनों लाइंस का कि लैंग्वेज चेंजेस डायनेमिकली एंड कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड स्टैटिक। एनीवन? कोई एग्जांपल है? मैंने एक एग्जांपल दिया, आप लोगों के पास कोई और एग्जांपल है इस चीज का? मैम कम्युनिकेशन को हम एज अ तहजीब की तरह ले सकते हैं कि तहजीब से बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो बता रहा है कि स्टैटिक कैसे है कम्युनिकेशन। मैम जैसे कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लिखते नहीं है या डिक्शनरी में फाउंड नहीं है, लेकिन वो होते हैं। जी जी। जैसे हम किसी को, जैसे हम स्पेशली बॉयज जो कहते हैं ना, अबे यार ये करो, अबे ऐसा करो। अब ये अबे जो है, जी ये बेसिकली कभी हमने न लिखा है न पढ़ा है, तो ये भी है, लैंग्वेज डायनेमिकली थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। वेरी गुड। और ये आपका बताएगा एक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दे रहा है। वो ये दे रहा है कि आप जी, वो ये दे रहा है कि आप अपने दोस्त के साथ किस लेवल पे फ्रैंक है, ठीक है। आपकी दोस्ती किस लेवल की है, या अगर दूर से कोई ग्रुप ऑफ बॉयज खड़ा हुआ है, वो इस तरह से बात कर रहा है, तो जो भी गुजरेगा वो कहेंगे दिस इज द ग्रुप ऑफ यंग बॉयज। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। Anybody else want to add something? No, miss. Can somebody tell me कि टाइम कितना रह गया इस मीटिंग में खत्म होने का, बिकॉज मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। Miss, it's up to you. No, no, it shows now in the Zoom meeting, it shows to the participants that Ma'am, we also can't see the time. okay, this is again happening. Few minutes ago, you know, there was a title in this on the screen that this meeting has no longer time. Oh, okay, so I don't know what does it means now. 1 to 2 minutes. Yes, तो है मैम 1 से 2 मिनट रहते हैं। ओके। अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो वी विल ज्वाइन अगेन, ठीक है। सो द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट चेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, किस तरह से बात कर रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, ठहर ठहर के बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, बहुत स्लो बोल रहे हैं,
ये बेसिक्स होती हैं. However, new words are added to the dictionary of language almost daily, and it's up to you whether to use or not. Like examples of the words having negative or bad meaning, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये आप पे मुनहसर करता है कि आप अपनी लैंग्वेज में रखे हुए अल्फाज जो हैं वो किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. और वो भी अगेन आप मैं जी मैम किसी का मैम लहजा नरम होता तो किसी का सख्त होता, तो मैम इसको भी ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैम. ये स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन या स्पीकिंग में आएगा. वी विल रीड अबाउट इट इंशाल्लाह. व्हाई डू वी कम्युनिकेट? अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कम्युनिकेट करते ही क्यों हैं, गिव मी सम एग्जांपल्स. मैम ताकि हम अपनी बात दूसरों को समझा सकें. क्यों समझाना चाह रहे हैं? ऐसी क्या मैम जरूरत? जब तक बिकॉज कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे? कम्युनिकेट मैम अब करेंगे तो हम अपनी बात नहीं समझा पाएंगे दूसरे को. ओके. दूसरा मैम जैसे कि हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हमें कम्युनिकेट करना है, मतलब कुछ भी needs मैम को अपनी पूरा. फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं. ओके. यस मुजम्मिल बोलिए. मैम आई थिंक कि जो सिंबल्स हैं या जो हमारे इशारे हैं ये लिमिटेड है. गुड. जैसे हमें फर्स्ट सेमेस्टर में समझाया गया था कि मुझे भूख लगी है तो मैं मुंह की तरफ पेट की तरफ इशारा करता हूं तो हो जाता है. अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है तो ये इशारों में तो नहीं बताया जा सकता. तो बिल्कुल इसीलिए कम्युनिकेशन लाजिम है. जी. दूसरी ये कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको चीज़ें भी, अगर आपकी अच्छी वोकैबुलरी है, अच्छी लैंग्वेज कहने का तरीक़ेकार है, तो वो आपको हेल्प करता है. ठीक है. कोई और बच्चा बोलना चाहेगा कि व्हाई डू वी कम्युनिकेट? हम कम्युनिकेट ही क्यों कर रहे हैं? मैम अपनी फीलिंग्स और अपने जो थॉट्स है मैम वो शेयर करना, तो वो तो अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा. सही है. लेकिन हम क्यों करना चाह रहे हैं अपने थॉट्स और मैसेजेस कम्युनिकेट? जरूरत ही क्या पड़ी है, ये मैं पूछ रही मैम क्योंकि इसके बगैर हम लोग एनवायरनमेंट नहीं वो कर सकते. अगर हम किसी कम्युनिकेट नहीं करते तो हम ओवरऑल कुछ भी नहीं कर सकते. मैम तो सोसाइटी में हम मूव नहीं कर सकते. because of needs. नीड्स. ठीक. कैसी नीड्स? सम एग्जांपल्स. मीन्स मैम जैसे हमें कोई चीज चाहिए हो या हमें किसी से कोई काम करवाना हो, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है. सर फ्रेंड्स की, कोई फ्रेंड्स हो या कोई रिलेटिव हो, कुछ भी हो सकता है. मैम जैसे कि अभी जैसे हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, हम ग्रुप स्टडी करते हैं, कहते हैं कि यार आप समझा दे हमें इस तरह. वेरी गुड. मैम जैसे कि आप अभी पढ़ा रहे हैं, आपकी जरूरत है हमें पढ़ाना, और हम पढ़ रहे हैं, हमारी जरूरत है पढ़ना. यस मैम. ओके. और कोई एग्जांपल्स ऐड करना चाहेगा? वेरी गुड एग्जांपल्स. यस वीर जी. ओके. क्योंकि हम मैम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. जी. हम कम्युनिकेट करते हैं बिकॉज अ मैन इज अ सोशल एनिमल. जैसे आप लोगों ने बता दिया कि हमें नीड्स की ज़रूरत होती है, नीड्स पूरा करने के लिए भी कम्युनिकेट, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव जस्ट गिवन मी एज एन एग्जाम्पल. सम ऑफ देम आर, yes, who is speaking? Some of them are on the slide. A man is a social animal. Social animal की कुछ बता सकेंगे? If I ask you, social animal क्यों No है? idea मैम. सोशल एनिमल क्यों है इंसान? मैम सोशल में क्योंकि हम माशरे से बंधे हुए हैं, बगैर माशरे के हम कुछ नहीं. सही. जी शाहताज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोलें. क्योंकि मैम हम एक दूसरे से इनसार करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत है. वेरी गुड. वी कांट सर्वाइव अलोन बेसिकली. ठीक है.
We communicate with each other to live a healthy life. Healthy life गुजारने के लिए you have to communicate with another person. एक तो physically healthy life हो जाएगी. How? Because you will go out, get yourself food, ठीक है, पानी, shelter, job. और जब आप अपनी फीलिंग्स और अपने ख्यालात किसी से करेंगे तो मेंटली भी you will have a healthy life. Am I right? यस मैम। यस फॉर मैम। एग्जांपल अगर आपको आ रहा हो तो बताएं। मैम पर ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी थिंकिंग ये हो कि दे वांट एनी पर्सन और एनीथिंग टू कम्युनिकेट और टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो मैम कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब अलोन रहना चाहते हैं, वो चाहते ही ये है कि हमारी हेल्थनेस इसमें है कि हम अलोन रहें। तो मैम ये क्या चीज? देखें, ये तो आपकी फिर पर्सनल चॉइस पे आ जाता है अब्दुल्ला। व्हाट हैपन इज कि तो मैम वो भी तो मतलब हर किसी की पर्सनल जितना भी चॉइस ही कोई होती है ना। अकेला रहना चाहे, बोलो जुबैर। मैम जितना भी कोई अकेला रहना चाहे कम से कम उसे पानी की जरूरत होगी, जी वेरी गुड। की जरूरत होगी, उसे कपड़े की जरूरत होगी, कुछ ना कुछ जरूरत होगी। हाँ, यहाँ पे जब हम सोशल एनिमल की बात करते हैं तो एक बात तो डेफिनेटली ये है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट इसलिए करते हैं, सिंस द बिगनिंग ऑफ द टाइम इंसान को तहफ़्फ़ुज़ जब मिला था व्हेन दे वर टू और टू से ज़्यादा हो गए थे। व्हाट हैपेंड कि पहले जब स्टार्टिंग जब हुई थी, इंसान को थोड़ा बहुत शऊर आना शुरू हुआ था, उसको डायनासोर्स खा जाते थे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट। तो हाउ वुड ही हैड द आइडिया कि अगर हम दो बंदे होंगे एक साथ मिल के रहेंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी, हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। एक अकेला आदमी अगर डायनासोर से जा रहा था लड़ाई करने के लिए तो वो डायनासोर्स को खा गया, बट दो बंदे जो थे वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते थे। दे कुड protect each other, and then they started living in a groups, and then they formed community, and then it extended to the countries and so on. So this is the first thing कि why men started to live in a community और why it become अब socialize उसको होना पड़ गया क्योंकि अब जाहिर सी बात है we are depending no ठीक है हम अकेला रहना चाहते हैं, हम लोगों से interact नहीं करना चाहते, but you need to have a food और फूड के लिए आपके पास जॉब होनी चाहिए। तो यू विल गो टू द वर्क, ठीक है, यू विल अर्न मनी टू बाय फूड। ये अब आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि यू विल गो टू द वर्क एंड यू विल ओनली इंटरेक्ट अकॉर्डिंग टू द योर वर्क। वो जब काम से काम रखने वाले बंदे का जो अल्फाज जो मुहावरा है वो यही है कि अपने काम से काम रखो। वो पीपल होते हैं जो विच आर इंट्रोवर्ट और अ लोनर, तो ये उनके लिए यूज होता है। लेकिन अगेन आप अकेले तो काम पे जाके बिल्कुल अगर आप अपने काम से काम रखे हुए हैं और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं तो लोग आपको फिर क्या कहेंगे? किसी को पता है इस चीज का मीनिंग क्या कहेंगे उनको? खुदगर्ज और एंटी सोशल। वेरी गुड, एंटी सोशल कहेंगे। और मतलब भी कहेंगे। अनसोशल। मतलब जी यस के बी मगरूर। जी, तो ये अच्छे अल्फाज है कि कोई आपको इन अल्फाजों से पुकारे। अब मैम ये No, तो ma'am. नहीं है ना, अब एरोगेंस भी वहां पर ही शो होगी अगर वो बंदा मतलब किसी ग्रुप के एंटी होगा। मतलब एक बंदा है ही ऐसा कि मतलब वो अलोन है, बिल्कुल सबसे मतलब कम्युनिकेट अगर किसी से करता है तो बिल्कुल एक जैसी करता है, वरना करता ही नहीं है, मतलब खुद से बातें करता रहता है। तो उसकी मतलब एंटीनेस तो किसी से है ही नहीं ना, तो उसके खिलाफ बंदे, उसके अगेंस्ट में बंदे क्यों खड़े होंगे जबकि वो सबसे एक जैसा पेश आता है। हाँ, लेकिन एक कुछ आप लोगों के अभी जब मैं आपसे when we were gonna read about effective communication, तो उसमें अब आपको पता चलेगा कि एक effective communication में एक आपका social behavior भी count करता है। इंशाल्लाह उस स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे जब हो रही है कि आप अकेले एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। हेल्दी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी, अकेले का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सम पर्सन। It here is you do
need a person in your life, we need our parents, we need our siblings, we need our friends, सब कुछ. लेकिन still you need to earn money to survive so that you can have a food, shelter. ठीक है? And for that you have to have a very effective communication. अगर आप अपने वर्क में जाके बिल्कुल एरोगेंट तरीके से बिहेव करेंगे तो पीपल विल एक तो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे कि भाई उस बंदे से क्या बात करना, वो तो अपने आप में रहता है. ठीक है, अब हम जाते हैं वी कम्युनिकेट थ्रू शेयर्ड लैंग्वेज. शेयर्ड लैंग्वेज का यहाँ पे क्या कंसेप्ट होगा इफ आई आस्क यू? मैम जो लैंग्वेज हम शेयर करते हैं, हाँ जैसे कि आप इंग्लिश, एक चाइनीज है बंदा, आप उससे इंग्लिश बोलोगे तो वही बात हो गई ना कि समझ में तो नहीं आएगी. वेरी तो गुड. वो लैंग्वेज शेयर होना सही है. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या किसी भी कम्युनिकेशन के लिए वी हैव टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज, एंड वो जो हमने पहले पढ़ा कि इट शुड बी कन्वेंशनल. अब एक बंदा बोल तो उर्दू रहा है, अगला बंदा भी उर्दू रहा है, लेकिन अगर वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड उर्दू नहीं बोलेगा, अब लैंग्वेज शेयर्ड है इनकी, दोनों उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल मुश्किल अल्फाज उसके बीच में यूज करेगा, तो फिर क्या होगा? कोई बता सकता है? समझ में नहीं आएगी बात. बिल्कुल. अगले बंदे, अब यहाँ पे तो शेयर्ड लैंग्वेज वही आ रही है कि उर्दू ही बोली जा रही है, लेकिन अब उसमें लैंग्वेज इतनी, उस उर्दू में वर्ड्स इतने मुश्किल मुश्किल इस्तेमाल कर लिए हैं कि अगला बंदा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा. सो वी हैव टू हैव अ इजी कन्वेंशनल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है जी. और मैम इससे मतलब हम ये भी जज कर सकते हैं कि मतलब ये किस लैंग्वेज से रिलेटिव है, इसकी लैंग्वेज, असल लैंग्वेज क्या है. जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी मतलब कोई सिंधी है किसी उर्दू वाले से कम्युनिकेट करता है, या किसी पश्तू वाले से, किसी भी मतलब अपनी लैंग्वेज से हटकर किसी और लैंग्वेज वाले से मतलब कोई कम्युनिकेट करता है, तो उस हेलो हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? हेलो. Hello? Can you guys hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I got disconnected, I guess. What was the last? Yes, ma'am, we can hear you. What was the last message you guys heard? I don't know. Okay. Hello? यस मैम, मैं बता रहा था कि मतलब किसी मतलब हमारी अपनी लैंग्वेज से हटकर किसी और लैंग्वेज वाले से कम्युनिकेट करने से हम ये भी जज करते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज से वाबस्ता है. बिल्कुल. Now we come to the definition of a communication. What is communication? The word communication has been derived from the Latin word communis, meaning to share, like we have been saying since the beginning of the lecture, that communication is to share knowledge, information, messages. It's an act of sharing and conveying information. Dictionary defines it as a
process by which information is exchanged between two or more individuals through a common system. अब आपको लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए दो बंदे का होना जरूरी है या एक बंदे के साथ कम्युनिकेशन हो जाती है? Anyone? Hello? एक बंदा तो अपने साथ तो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, उससे किसी की जरूरत होगी कम्युनिकेशन करने के लिए। For your example, apart from that. मैम जो अकेला बंदा होगा मैम, वो तो अपने आप में जो बोलेगा ना, मतलब बड़बड़ाता रहेगा, बोलता रहेगा, तो उसको तो मैम किसी न किसी की तो जरूरत होगी जो उससे कम्युनिकेशन कर सके। सही, ठीक है, ओके। मैम जी मैम, मैं अपना पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस के। कभी कभी हम अकेले होते हैं तो आईने के सामने कोई चीज हमें प्रैक्टिस करना हो या फिर कुछ कहना हो या दिल की भड़ास निकालनी हो तो हम आईने के सामने बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। इससे भी हमें एक मैसेज मिलता है। वेरी गुड, हमें अपनी जात के बारे में मालूमात होती है तो इससे मैसेज मिलता है। और मैम यस कोई सिचुएशन ऐसी भी होती है जब बंदा अलोन होता है तो मतलब खुद ब खुद कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है, मतलब कि खुद से बातें करना लग जाता है। और मैं अपनी एक बात बताऊं कि मैं मतलब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे होता हूँ, बाइक पे, खास तौर पे बाइक पे, तो लाइक स्पीच कुछ ना कुछ बोलता जाता हूँ, या फिर उर्दू में या फिर इंग्लिश में। पता भी होता है कि मेरे साथ कोई नहीं, अकेला होता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है खुद से बातें करता जाता हूँ। Okay, so you are reliving your thoughts at the moment when you are driving or riding a bike or you are standing in front of a mirror, you are self-evaluating yourself. Presentations जब हमारी होती हैं, यस मैम, जी, when we are यस मैम, मोस्टली बाइक पे, okay, that's a good thing. सेफली ड्राइव कीजिए, जरूर घूमिए लेकिन सेफली ड्राइव कीजिए। तो जब हमारी प्रेजेंटेशन होती है तो हम खुद भी मिरर के सामने खड़े होकर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि व्हाई डू वी कम्युनिकेट, तो हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं कि हम फ्रेंडशिप्स कर सकें, रिलेशनशिप्स बना सकें, बिजनेस पर्पसेस के लिए कम्युनिकेट करते हैं। फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप और बिजनेस पर्पसेस के लिए हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर, कौन बताएगा, वी आर सोशल एनिमल्स। वेरी गुड, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। दिस इज ऑल डन टू मेक अ नेटवर्क एंड विद कम्युनिकेशन इट कैन बी अचीव। अब नेटवर्क क्या हो रहा है, वो कहते हैं यार नेटवर्किंग करो तो तुम्हें, या पीआर बनाओ तो तुम्हें फायदा होगा। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी कम्युनिकेट, वी आर नेटवर्किंग, we are making relations which are either business relations or personal relations। तो दोनों सूरतों में हमें क्या देते हैं, they benefit us, they give us फायदा, ठीक है। नेटवर्किंग इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अमंग पीपल विद अ कॉमन प्रोफेशन और अ स्पेशल इंटरेस्ट। इस लाइन का मतलब मुझे कौन बताएगा? Which line? Networking is the exchange of information and ideas. It's on your screen. You guys can see that screen, right? The slide which I'm on. Networking या PR जो हमें जी Ma'am, by this, by networking, this statement means that exchanging exchanging information, or we can say exchanging experience. Every person has a different perspective of working, doing things, and doing their task or any professional work. So, by this means that every person shares its different opinions about the work, and we get better in it. Nice, very nice. मैम जैसे कि खासकर आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे हमने बनाया हो, उस ग्रुप में मखसूस एक चीज शेयर करते रहते हैं। अगर मैं करूँ या दूसरा बंदा, तीसरा, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबको एक ही पॉइंट पर
इकट्ठा करना। जी, तो हमारा जो नेटवर्क है वो क्या मतलब हर कोई बंदा आ सकता है उसमें या कोई खास बंदा आ सकता है उसमें? ये जो हमारा एक थोड़ा सा नेटवर्क ही हो गया ना, मतलब सर। मैम नेटवर्क अगर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हर किस्म के लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, अपने नेटवर्क में लाएंगे तो मतलब इससे ये मैसेज देंगे कि वो भी हमारे हिसाब से चले, हमारे आइडियाज और हमारे पॉइंट्स से एग्री करे या कि हमारे पॉइंट्स पर चले। We can't force other people to like our ideas or obey or live by our rules. We can just tell them what is good or what is wrong. Networking is exchange of information and ideas among people with a common profession or a special interest. It means कि हमारा common profession होना चाहिए. डॉक्टर्स के साथ बात करते हुए ज़्यादा इजी या कंफर्टेबल फील करेंगे और वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ जाएंगे। अब मैं और आप जो है हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, हमें इंग्लिश के टर्म्स समझ में आएंगे, हम बोलेंगे यार ये मार्क्सिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर ये फेमिनिज्म की बात हो रही है, या फिर शेक्सपियर ने ऐसा कहा था, या फिर जैन ऑस्टिन ये कहती हैं। तो अब जिसने जैन ऑस्टिन को पढ़ा हुआ है या जिसने शेक्सपियर को पढ़ा हुआ है वो समझ जाएगा। व्हाट इज द फेमस डायलॉग फ्रॉम वो कोई भी ड्रामा है शेक्सपियर का, किसी को कुछ याद हो तो शेयर करें। There are more things on earth and heaven than your philosophy. Okay, some other person. अभी जैसे अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, अगर हमारा कॉमन ग्राउंड होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा, टीचर्स के साथ बात करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, वो थोड़ा इनफॉर्मल भी हो जाएंगे। लेकिन वही टीचर अगर किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका प्रोफेशनल गैप आ जाएगा, उसका स्टेटस गैप भी आ जाएगा कि भाई जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की इज्जत ज़्यादा है पाकिस्तान में बनिस्बत टीचर्स की, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी तो इज्जत सबसे ही ज़्यादा है बनिस्बत किसी भी इंसान की। तो वो एक थोड़ा सा गैप भी आ जाता है इसके बीच। लेकिन जो डॉक्टर्स के साथ बात करेंगे उनको ज़्यादा अच्छा फील होगा, उनका स्पेशल इंटरेस्ट होगा, कॉमन प्रोफेशन होगा आपस में, वो इजीली एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना सकेंगे। उनका एक सिंगल पॉइंट क्या हुआ, जो मेन सिंगल पॉइंट या कॉमन ग्राउंड है वो उनका प्रोफेशन हो गया डॉक्टर्स का। ठीक है, इसी तरह से आगे उनका जो भी मोर उनके कॉमन ग्राउंड्स आ रहे हैं या प्रोफेशनली ग्राउंड्स आ रहे हैं वो उनको हेल्प करते हैं। अब ऑनलाइन जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि नेटवर्किंग हम करते हैं, अभी दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग एन ऑनलाइन क्लास एट द मोमेंट। तो हाउ वी आर डूइंग, वी आर हैविंग अ क्लास एट द मोमेंट विच वाज शेयर्ड, the link was shared on a WhatsApp group, like आपने अभी एक बच्चे ने एग्जांपल दिया कि हमने अपना एक WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम उसमें तो सिर्फ हम ही लोग होंगे ना जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स से लेना देना होगा, हमारी ही क्लास है। तो हमारा कॉमन ग्राउंड क्या है कि हम टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, और हमारा इसी में स्पेशल इंटरेस्ट है। हम जब आपस में डिस्कस करते हैं तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेटिंग्स में डिस्कस करते हैं। When you are discussing it with me, you are in a formal setting. When you are discussing among yourself, you are in an informal setting. समझ में आया? Any example you want to add? मैम जो डिपार्टमेंट मैम जिसका होगा उसी हिसाब से मैम कम्युनिकेशन में मतलब जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बिल्कुल, ये मैं आपको जो भी whatever is written on the slide, I am explaining you with example ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। So I'm just giving you the example of the networking because there was okay, why do we communicate? To form friendships, relationships and business purposes, which is help us to make a network। और वो किस तरह से नेटवर्किंग या हमारी रिलेशनशिप बन सकती हैं, वो कम्युनिकेशन के जरिए हो सकता है। And then we come to the fourth point, networking provides us both personal and professional opportunities, ultimately helps us in succeeding in life।
तो ये हम जब एक कॉमन लोग होंगे तो हमें हेल्प करेगा आगे प्रोफेशनली बढ़ने में, पर्सनली बढ़ने में, हमें सक्सेस मिलेगा लाइफ में। अब जैसे आप लोगों आपस में बातचीत करते हैं, मैं हूँ आप हैं, हम लोगों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, हम अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, लेकिन अगर वो टीचिंग से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो हम शेयर कर सकते हैं। प्लम्बिंग से या मैकेनिक से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी तो हम एक दूसरे से नहीं शेयर कर सकते। तो वो उनका अपना एक ग्रुप होगा, उनकी एक अपनी एक दूसरे के साथ बातचीत होगी, एक नेटवर्किंग होगी, जिससे वो चीजें शेयर कर पाएंगे। कोई और एग्जाम्पल अगर आप लोग देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस मैम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप का इसी तरह अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम सिर्फ जितने भी मेंबर्स है सारे गजल सेंड करते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सिंगर्स के हो या कि इंडियंस के हो, मतलब एक मखसूस चीज शेयर करते रहते हैं। वेरी गुड। तो वहाँ पे सब लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको गजल पसंद है, ठीक है, और जो भी कोई नई गजल आती है या किसी को अपनी कोई पसंदीदा गजल है तो वो दूसरे को बताता है, तो वो दूसरे बंदे को जिसने वो पहले नहीं सुनी हुई उसको पसंद आती है और वो भी फिर उसकी फेवरेट गजल हो जाती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज अभी कोई गर्ल्स के पास do you girls do you have any example to share with us? अक्सा हो गए, सिद्रा हो गई, शाहताज, you can write in chat. If you can't speak, your mics are mute though, or not connected. Okay, what is a skill? अगर मैं आपसे पूछूं what is a skill तो क्या बताएंगे? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ओके। मैम किसी चीज को करने की काबिलियत। और मैम किसी भी चीज को ability to सही do तरीके से something, ma'am. yes, The ability to do मैम स्किल something. मीन क्वालिटीज। मैम किसी भी चीज को सही तरीके से करना, मतलब परफेक्ट अंदाज में, उसको स्किल कहते हैं। An ability to perform anything perfectly. मैम मैं इसे क्या कोई भी बंदा स्किलफुल हो सकता है, किसी में भी कोई स्किल आ सकती है, काबिलियत आ सकती है, एबिलिटी आ सकती है। अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं तो क्या आप कल को पेंटर बन जाएंगे? बताएं। नो मैम, वो तो अब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना कि हम अगर क्या कहते हैं ड्राइंग कर सकते हैं तो हमारा अगर इंटरेस्ट है आगे पेंटर बनने का तो हम वो भी बन जाएंगे। और लाजमी नहीं है कि हम जो है मतलब ड्राइंग कर सकते हैं तो हमें जो है पेंटर ही बनना है। ये एक स्किल होता है, ये एक मतलब के सलाहियत का होना। एक किस्म की नॉलेज होती है। हम मतलब ये लाजमी नहीं है कि हम मतलब इंग्लिश में रहकर बाकी लैंग्वेजेस को ना जाने। हमें ये अब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कोई बंदा ऐसा भी होता है जिसका इंटरेस्ट होता है कि भाई मेरा डिपार्टमेंट इंग्लिश है लेकिन मैं कुछ चीजें बीबीए से भी जानना चाहता हूँ, कुछ चीजें कॉमर्स से भी जानना चाहता हूँ। अब ये जो चीजें हैं सब सारी जो है इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे जो है वो पेंटर बनना है, लेकिन आप जब भी कबूतर बनाने लगते हैं तो वो कुछ और ही चीज बन जाता है, तो फिर मैम प्रैक्टिस उसके करनी अंदर पड़ती है। क्रिएटिविटी होना तो चाहिए वो एक अगर इंटरेस्ट है हमें, अगर मतलब कोई पेंटर बनना है तो सर हर चीज को मतलब परफॉर्म करने के लिए लाजमी थोड़ी है कि स्टार्टिंग से हम उस चीज को परफेक्टली बना सकें या उस चीज तक पहुंच सकें। हर चीज हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मुश्किलातों का सामना करना ही पड़ता है। अब यहाँ तक हम पहुंचे यूनिवर्सिटी तक तो हम भी मतलब 12 साल वेस्ट करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं हुए ना, वैसे ही मतलब
कुछ चीजें जुड़ेंगी फिर टूटेंगी, जुड़ेंगी टूटेंगी, एक दिन जुड़ जाएंगी। अच्छा मैम सीखने से वो चीज हो जाती है, जैसे कि एक मिसाल में खाने के ऊपर दूंगी कि अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, शुरू शुरू में बहुत सी मुश्किलात हमें पेश आएंगी, हमें नहीं पता होगा उसमें क्या डालना है क्या नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज हमें वक्त के साथ साथ आ जाएगी। ओके मैम जैसे कि एक बात कहीं कहीं से मैंने पढ़ी थी कि पिकासो कहीं बैठा हुआ था, तो उसके पास कोई एक बंदा आके उससे कहा कि आप पिकासो, तो उन्होंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक स्केच बनाओ या कि पेंटिंग बना दो। तो पिकासो ने उसकी पेंटिंग बना के उसको दे दी उसी टाइम बैठे हुई जगह पे। तो उससे इतना मतलब डिमांड जो पैसों की थी तो इतनी ज्यादा की थी, मतलब इससे मतलब ये फिर उसने पिकासो ने ये जवाब दिया कि अगर आपको ये पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो आप खुद बना देते अपनी तस्वीर। इससे ये जाहिर होता है कि हर किसी के पास हर स्किल नहीं होती, चाहे जितनी भी वो कोशिश करे। लेकिन कोशिश करके कुछ, चले पिकासो तो कोई नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन अगर आपका एक क्रिएटिविटी है, आप सीखना चाहते हैं कोई क्रिएटिव वर्क, तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आप कुछ हद तक उसमें अच्छे हो जाएंगे। अगर बहुत अच्छे नहीं हो सकते तो कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं। कुछ इस चीज से मुत्तफिक हैं आप लोग? यस मैम। मैम मतलब अच्छे हो सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट तो कोई भी नहीं ना, खुदा की जात के अलावा तो कोई चीज परफेक्ट नहीं ना। मैम वो तो बिल्कुल सही है, मगर इस कदर जैसे कि पिकासो की मिसाल मैंने दी, पिकासो की तरह कोई और नहीं बन सकता, या कि कोई बन सकता है तो उसकी अपनी एक सलाहियत होगी, जितना वो बन सकते हैं वो बन सकते हैं, मगर पिकासो कोई नहीं बन सकता। या कि मैं अगर पेंटिंग करना चाहूँ तो जितनी भी मेहनत करूं मैं, हो सकता है उस तरह का पेंटिंग नहीं बना सकूं जैसे एग्जैक्ट कोई चीज मौजूद है। लेकिन आप कोशिश करके कुछ हद तक तो उसके करीब जा सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं बना सकेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकेंगे, लेकिन आप बहुत हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। बहुत हद तक आप एक अच्छे मैनर में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे, या जो भी स्किल होगी आपकी, जो भी आप सीख के बताना यस चाहेंगे। मैम, ये बिल्कुल सही है, उसकी तरह परफेक्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन हो सकता है कोई उससे 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 भी कुछ अच्छा बना ले या फिर उससे थोड़ा सा कम। जी बिल्कुल। तो मतलब ये कि किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत करेंगे, किसी भी चीज़ को सीखेंगे, तो उसको क्या कहलाएगा वो? स्किल्स। Very good. An ability that has been acquired by training, rigorous training. बार बार आपने मेहनत की, बार बार आपने, आप हारे, आप गिरे, आप फिर उठे, फिर आपने मेहनत की, आप गिरे फिर उठे, फिर आपने मेहनत की। What happen is कि जो एथलीट्स होते हैं वो आप बिल्कुल, आप तेज दौड़ दौड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि कितने कितने स्टाइल से आपने किस तरह से भागना है कि आपके पाँव में मोच ना आए, किस तरह से आप भागेंगे कि आप हैमस्ट्रिंग्स पुल ना कर लें अपनी, तो वो ट्रेनिंग की जरूरत है। वो ट्रेनिंग करेगा, उसमें अपनी मेहनत डालेगा, तो वो अपनी जो स्किल है वो स्किल एक्वायर करेगा रनिंग की। इसी तरह से जो अगर पेंटर बनना चाहता है तो वो अपने आप को बार बार मेहनत करेगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा, और इस तरह से वो ट्रेनिंग हासिल करके जो है वो एक अच्छा पेंटर बन सकेगा। जब हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो व्हाई डू वी हैव टू लर्न ग्रामर? क्या जरूरत है, बोल लिया ना, क्या जरूरत है डिडंट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है नहीं लगानी है? इसलिए कि वो ट्रेनिंग देते हैं हमें, हमें प्रैक्टिस करके सिखाते हैं एक अच्छी परफेक्शन के लिए, एक अच्छी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर सेल्फ टू अदर पीपल। ये चीज़ें हमारे साथ हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती हैं। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक उर्दू, लेकिन अगर मैं उर्दू बोलते हुए ये बोलूं कि मैं तो ये करूंगा, तो सही नहीं आएगा, बिकॉज आई एम अ फीमेल, आई शुड बी स्पीकिंग मैं तो ये करूंगी। ठीक। तो जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो दिस इज one of the example of a skill, anything, any ability that has been acquired by training. कोई चीज़ें खुदादाद अगर आपके पास नहीं है, अल्लाह ने आपको गॉड गिफ्टेड नहीं दी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप जाके उसको सीखते हैं, तो आप वो चीज़
कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल देंगे आप मुझे इस चीज का कि कौन सी चीजें सीखी जा सकती हैं? और वो चीजें जो इंसान ने खुद बनाई हो। हर वो चीजें, और वो काम या चीजें जो इंसान के अपने हाथ में हो, उन्होंने खुद बनाई हो। एग्जाम्पल दो ना, ये मैम एक बैग सा स्टेटमेंट दे रहे हो। बनाना इंसान, हर कोई इंसान अगर चाहे तो सीख सकता है। और जैसे हर चीज का, जैसे टीचिंग करना, या कि आपने जैसे कहा लैंग्वेज लैंग्वेज, जाहिर सी बात है सीख जाएंगे। Very good. मतलब आप कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जाके किसी जगह पे सीखेंगे। जैसे स्कूल में हम जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम अपनी एबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, हम अपनी मैथ्स की क्या लॉजिक अप्लाई करना सीखते हैं। हम मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ठीक है। इसी तरह से हम जब कंप्यूटर सीखते हैं, हर एक को कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन देयर आर पीपल हु आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो जाके सीख रहे हैं। एक सिंपल कंप्यूटर मैं और आप भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जाके उस चीज को सीख रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरह से एबिलिटीज और भी होंगी। और एग्जांपल्स आपके ध्यान में क्या होंगे? एक तो मैंने बेंडिंग की दी आपको कि अगर आपके अंदर नहीं है एबिलिटी अच्छे तरीके से ड्राइंग करने की, लेकिन अगर आप जाके सीखते हैं तो आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि एक तो आपने सीखना है, और सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना ही आपके लिए वो फायदा होगा। मैम मैंने स्केचिंग सीखी हुई है। ओके, आई वुड लाइक टू सी इट, शेयर इट विद मी समटाइम। कोई मुझे टाइम बताएगा मीटिंग का, क्योंकि यहाँ पे कुछ अजीब सा फ्लैश कर रहा है। मैम टाइम तकरीबन दूसरी मरतबा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भूख हमें बता रही है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा, you guys are hungry at the moment. You guys are hungry in the morning. You guys are hungry in the evening. तो जब बताया था ना कि the time is at 8 o'clock, you should have eaten something. Okay, right. टाइमिंग बता रहा हूँ कि 1 घंटे से ऊपर हो गई है इस चीज का। अच्छा. Okay, what is the nature of communication? If we go for the nature of communication, तो क्या आएगा आपके जहन में? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। यू कांट कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। ठीक है, हायर लेवल में आप अपने आप को जानना चाह रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन स्किल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ओके, यू वांट टू नो योरसेल्फ, इट्स ओके। लेकिन व्हेन सिंपली अगर हम बात करते हैं इस नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की, इट्स अ टू वे प्रोसेस, an understanding between two or more persons, sender and a receiver. There has to be a sender and there has to be a receiver for a communication. अब sender और receiver कौन होगा? Do you have any idea? यस मैम, जो बात कर यस रहे हो मैम, जो आगे एक वाला वो सुन जो रहा है। मतलब अपनी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करता, वो मतलब सेंडर। और जो मतलब उसको सुनने के लिए बैठा होता है, या वो जो बताने वाला सामने होता है, तो हम जिससे हम जो नॉलेज हासिल करते हैं, वो मतलब उससे हम रिसीवर हो गए, और उससे जो नॉलेज हासिल करेंगे वो हम उससे रिसीव करेंगे, तो हम रिसीवर हो गए उसके लिए। और हम जो कोई चीज उसको बताएंगे तो हम सेंडर हो गए, सेंड करने वाले, बताने वाले। Okay, if we are communicating at the moment, आप में और मुझ में, who is the sender and who is the receiver? मैम आप सेंडर है और हम You are रिसीवर। sender. Sir, you are sender and we are receiver. Are you receiving the information properly? Ma'am, Yes. we can't say that properly, but a little but close. Okay, because of the internet distraction and all that, right?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, if it was a Exactly. physical class, it would have been very much better. But unfortunately, we are in a very trying times because of the COVID. तो या ये हो रहा है बहुत ही मसला। कोई एग्जाम्पल है आपके पास सेंडर और रिसीवर का? सर एक तो ये है कि ये जो क्लास चल रही है इसमें आपने हमें मतलब ज्वाइनिंग की है, तो आप यहाँ पर सेंडर हुए, आप हमें जो कुछ पढ़ा रहे हैं और जो कुछ सिखा रहे हैं और जो चीज आप सिखा रहे हैं हमें उसको हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम रिसीवर हो गए और आप सेंडर हो गए। सही। आप जो मुझे, मैं अगर आपको चैट पे लिख के कुछ बोलूं तो उसमें क्या होगा? Who will be the sender and who will be the receiver? तो भी मैम सेम होगा, लेकिन मतलब वो चीज वो वे चेंज हुआ, लेकिन फिर भी आप तो सेंडर ही रही और मैं रिसीवर ही रहा, लेकिन द वे टू एक्सप्रेस वो थोड़ा चेंज हुआ। ठीक है, कोई और इस बात से मुत्तफिक है? Somebody wants to add something to this? Yes, Aksa, you're very quiet today. तो मैसेज में तो जाहिर सी बात है वो खुद बता देगा कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। Okay. Aksa, you're very quiet today. Are you there? Let me check. Okay, let's go to another slide. It's a continuous process. Nature of communication में एक और point हमारे पास है. It's a continuous process. Exchange of ideas and opinion amongst people is an ongoing process in business and non-business organizations. Continuous interaction promotes understanding and exchange of information relevant for decision making and कोई भी sort of information का सही तरह से पहुंच जाने के लिए भी continuous process होना चाहिए. Communication is a continuous process. Continuous process इसलिए है कि कोई भी आइडिया या कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो होगी वो जा ही नहीं पाएगी अगर बीच में बार बार डिस्कनेक्शन आ रहा हो. कोई एग्जांपल देगा मुझे? मैम क्वेश्चन सही से सुना नहीं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी एग्जैक्टली। मैम यही मिसाल भी हो सकती है, हम बैठे हैं सुनने के लिए लेकिन डिस्कनेक्ट बार बार हो रहे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। ओके, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए या है जिसमें जो भी कम्युनिकेशन हो रही है बंदों के दरमियान, दो बंदों के दरमियान, चाहे वो बिजनेस वाइज हो रही है या नॉन बिजनेस हो रही है, जैसे फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए. अगर ब्रेक आएगा तो मैसेज की जो वैल्यू है, मैसेज का जो मीनिंग है वो खो जाएगा. जैसे अभी आप लोगों को बीच में डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं और वी आर ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो दिस इज अ बैरियर. ठीक है, कोई और आपके ध्यान में इसका एग्जांपल हो सकता Yes, है? जी. और भी ये है कि मतलब कोई एक टॉपिक उठाते हैं हम और हम दो आपस में मतलब उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसा तीसरा आ जाए जो मतलब हमारे टॉपिक से हटकर कोई बात करे, तो मतलब हमारा जो हमारे जो आइडियाज होंगे वो उससे चेंज हो जाएंगे, तो जिसपे हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी पहले, हमारी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाएगा. कंटिन्यूस प्रोसेस होने का मकसद ये भी है कि हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो भी हम अपने अगर कोई बिजनेस पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर और बीच में बार बार ब्रेकेज आ रहा है या कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं चल रहा या कोई भी वजह से कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स आ रहा है तो अहम फैसले नहीं हो पाएंगे. मैं आपको अपनी क्लास के दौरान अगर मैं बता रही हूँ और मैं बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हो रही हूँ या मैं बार बार बीच में नॉइज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप लोग सही तरह से मेरा मैसेज समझ नहीं पाएंगे. ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस में अभी हम पढ़ रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं और घर में
जिस जगह में बैठा हूँ बता रोड जा रही है, रोड में गाड़ियों की आवाज है, तो ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह नहीं समझ सकते हैं जैसे कि फिजिकल क्लासेस में समझते हैं। तो इसमें भी मतलब डिस्ट्रक्शन आ रही है। ओके, सही।